Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start the Utkarsh Super Savior batch for CA Foundation Accounting. Right. So we are starting today with the basics. Right. Accounting process का basics. Basics से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे. Right. The entire accounting process, the entire accounting process is based on two words. Tell me, debit and credit, right? Debit, as we know, is coming from the Latin word debita, means what is due. Credit is coming from the Latin word creder, which means a trust, belief, faith, right? So, in the entire accounting process, we follow the rules of debit and credit. So, there are two sets, SETS, sets of rules. The golden rules of debit and credit, which is also called the traditional approach, and the modern rules of debit and credit, which is also called the accounting equation approach. Alternate नाम याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज कई बार क्वेश्चंस alternate नाम से पूछ सकता है. So golden rules, traditional approach, modern rules, accounting equation approach. Traditional approach में there are three classification of accounts: personal, real, and nominal. Personal is for all the persons. There are three subcategories of persons: natural person, artificial person, and representative person. Natural person में basically सारे human beings आ जाएंगे. Artificial person में सारे institutions, entities, companies, partnership firms, LLPs, etc. ये सब आ जाएंगे. And representative personal account is what? It is basically that account which is representing a person, a natural person or an artificial person. जैसे, for example, outstanding salary is representing the employee to whom the salary is payable. Employee is a person, right? So outstanding salary is representing the employee to whom the salary is payable. Employee is a person, so outstanding salary is representative personal account. अगर खाली सैलरी होता है तो it is an expense, a nominal account classified as a nominal account. But अगर outstanding है, so it is representative personal account. Clear? So एक मंत्र याद कर लेते हैं कि कोई भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट या प्रीपेड अमाउंट या कोई भी इनकम का अक्रूड अमाउंट या एडवांस अमाउंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फिर से, कोई भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. कोई भी इनकम का अक्रूड या एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. Real account stands for all the assets, tangible, intangible, all the assets. Nominal account stands for all the income, revenue, gain, expenses, losses, right? And what are the golden rules of accounting? What are the golden rules of debit and credit for these three classification? Personal account के case में debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, right? So this is a golden rules, the traditional approach. Next is the modern rules of debit and credit, which is the accounting equation approach. Accounting equation approach में 5 classification: assets, liabilities, capital, income and expense, right? क्या rule है इनके लिए? Asset increase debit, decrease credit. अभी ये बहुत यूज होगा बिकॉज मॉडर्न रूल्स हम लोग यूज करेंगे अकाउंटिंग में क्योंकि इजी होता है. सो एसेट के लिए रूल इज इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. एसेट के लिए जो रूल है सेम रूल इज फॉर एक्सपेंस: इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. So asset, expense, same rule: increase debit, decrease credit. And opposite is the rule for liabilities, capital, income:
यानी लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम के लिए रूल इज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ओके, तो मैंने एक्सरसाइज दिया क्लासिफिकेशन का, जहां पर काफी सारे आइटम्स हैं टाइटल ऑफ अकाउंट्स। तो हमें क्या करना है, इसमें क्लासिफाई करना है एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच यानी गोल्डन रूल्स, यानी बताना है इनमें से कौन सा अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल है। एंड देन द सेम एक्सरसाइज वी शैल डू इट फॉर द मॉडर्न रूल्स, यानी वी नीड टू क्लासिफाई द अकाउंट्स एज पर द मॉडर्न रूल्स अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जहां पर हमें बताना है कि कौन सा असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है, राइट। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन अपने को करके देना है। ये अपने होम टास्क में करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पूछेंगे, राइट। नेक्स्ट, क्लियर है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि हमने देखा अभी मॉडर्न रूल्स के केस में, मॉडर्न रूल्स का दूसरा नाम क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। एंड मॉडर्न रूल्स के केस में हमने देखा कि अकाउंट्स के 5 क्लासिफिकेशन है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, राइट। इसमें से एसेट एक्सपेंसेस का सेम रूल है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। एंड लायबिलिटीज कैपिटल इनकम का रूल इज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। क्लियर। तो अगर देखो, द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन वन थंब रूल, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल, इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो अगर अपने ये सारे क्लासिफिकेशन को एक इक्वेशन में सेट कर दे, तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस एक साइड में है, लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम ऑपोजिट साइड में है। दोनों को इक्वेट करेंगे, बिकॉज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एसेट एक्सपेंसेस का सेम रूल है, तो वो इक्वेशन के एक साइड में, लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का, इन तीनों का सेम रूल विच इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ असेट्स एंड एक्सपेंसेस, तो ये इक्वेशन के ऑपोजिट साइड में है। सो इक्वेशन कैसा बना इनिशियली, एसेट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू liabilities plus capital plus revenue, because for every debit there is a equal and corresponding credit। तो इनको इक्वेशन में सेट करने पर इक्वेशन क्या बना, एसेट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, राइट। अभी एक्सपेंसेस को अपने आरएचएस में ले आएंगे तो एक्सपेंसेस माइनस में आ जाएगा, यस नो। तो इक्वेशन क्या सेट हुआ, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस इज मोर देन रेवेन्यू तो इट इज नेट लॉस। क्लियर, जो कि अपने नेट प्रॉफिट को कैपिटल से ऐड करते हैं, नेट लॉस को कैपिटल से माइनस करते हैं। तो इक्वेशन एक ये भी हो गया कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस नेट लॉस। क्लियर है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अभी ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है, तो इसको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी इसको क्लास में देख रहे हैं, राइट। So Mr. David has provided following details related to his financials. Find out the missing figures. तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हेल्प लेकर मेरे को मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 5000 है, एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है ए, मिसिंग, मिसिंग है। लायबिलिटीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 12000 दिया हुआ है, एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग बी, मिसिंग है। लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर सी, मिसिंग है। क्लोजिंग कैपिटल 35000 है, total liabilities including capital at the end of the year. So this is total liabilities including capital at the end of the year. Now batao, capital at the end of the year means what, closing capital, capital at the end of the year is closing capital, and closing capital कितना दिया हुआ है 35000,
यानी 50,000 में से 35,000 क्लोजिंग कैपिटल है, तो बाकी लाइबिलिटीज का अमाउंट इज 15,000। यस और नो? बाकी लाइबिलिटीज का अमाउंट इज 15,000। सो लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर इज 15,000। लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर इज 15,000, तो सी निकल गया। देन एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला लॉन्ग कट है एंड दूसरा इज स्मार्ट वर्क। सो लॉन्ग कट क्या है? assets at the end of the year is equal to liabilities at the end of the year plus capital at the end of the year. Liabilities at the end of the year 15,000 है, capital at the end of the year which is closing capital 35,000 है, 15,000 plus 35,000 is equal to 50,000। स्मार्ट वे क्या है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज साइड असेट साइड है ना, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स है ना। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल भी होता है, साथ में बाकी लाइबिलिटीज भी होते हैं। सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 50,000, तो विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ असेट। तो असेट कितना हो जाएगा? असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ऑल्सो 50,000, राइट। यानी अपने ये भी सीखे कि बैलेंस शीट जो है वो एक तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो किया है। बैलेंस शीट में भी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो हो रहा है, बिकॉज बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज है जिसमें कैपिटल एंड बाकी लाइबिलिटीज आ गए, एंड राइट हैंड साइड में सारे असेट्स। सो टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। देन और क्या मिसिंग है? असेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो एसेट्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर ये कैसे निकालेंगे? यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। Assets at the beginning of the year is equal to liabilities at the beginning of the year plus capital at the beginning of the year. Liabilities at the beginning of the year 12,000 अपने को दिया हुआ है, liabilities at the beginning of the year 12,000 अपने को दिया हुआ है। तो काश कोई मेरे को कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर निकाल के दे दे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके अपने एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी एसेट्स, तो अभी अपने को पहले कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर चाहिए। तो कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कैसे निकाले? कैपिटल रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? क्लोजिंग कैपिटल 35,000 है एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5,000। ये कैपिटल से रिलेटेड है बिकॉज प्रॉफिट का अमाउंट अपने कैपिटल में ऐड करते हैं। कैसे? बिजनेस का जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट को ऐड करके अपने को क्या मिलता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? 5,000, क्लोजिंग कैपिटल 35,000। तो इससे मेरे को ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 30,000 मिल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल 30,000 मिल गया। सो ओपनिंग कैपिटल इज कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सो कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मिल गया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर निकालो। एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज इक्वल टू liabilities at the beginning of the year plus capital at the beginning of the year. Capital at the beginning of the year means opening capital, and liabilities at the beginning of the year is 12,000 है ना। So liabilities at the beginning of the year 12,000 plus opening capital 30,000 is equal to 42,000। निकल गया assets का अमाउंट। ठीक है, तो इसको अपने घर में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आंसर दिया हुआ है एंड ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, तो अपने को सॉल्यूशन उसमें प्रॉपर वे में लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज जर्नल। जर्नल इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर। फ्रेंच में जर का मीनिंग क्या है? डे, यानी डेली बेसिस। सो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने को डेली बेसिस में रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करना है? जर्नल एंट्री पास करके। एंट्री मतलब क्या? एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड, that is recorded in the books of accounts on a day to day basis by passing journal entries. Journal is day, daily. Okay, अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करे, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करे, जर्नल एंट्रीज पास करने का प्रोसेस क्या है? देखो, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है।
हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है विच इज वेरी ऑब्वियस। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को चाय पीना पसंद है, तो अपने दुकान में जाकर चाय खरीदते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन, ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या हुआ, हमारे हाथ में एक सिकोरा चाय का आया एंड दूसरा हमने 10 रुपया पेमेंट किया। तो ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या हुआ, हाथ में चाय का सिकोरा आया एंड 10 रुपया का पेमेंट किया। तो ये दो एस्पेक्ट है। तो इसी तरीके से हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का भी दो एस्पेक्ट समझना है। तो जैसे सैलरी पेड, जैसे सैलरी पेड, इसका दो एस्पेक्ट क्या है, सैलरी एक्सपेंस इनकर होना एंड पेमेंट मेड इन कैश। सैलरी एक्सपेंस कैसे इनकर हुआ, सैलरी का अमाउंट पे करके। सो दो एस्पेक्ट के, सैलरी एक्सपेंस इनकर्ड, दूसरा पेमेंट मेड इन कैश। तो हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट अपने को समझना है। एंड देन इन दोनों एस्पेक्ट में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व्ड है। जैसे सैलरी एक्सपेंस इनकर्ड में सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व्ड एंड पेमेंट मेड इन कैश में कैश अकाउंट इन्वॉल्व्ड। तो सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है, ये दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब देन इनका क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन अपने मॉडर्न रूल्स को प्रेफर करेंगे यूज करने के लिए, बिकॉज वो ज्यादा इजी एंड कन्वीनियंट है, राइट। सो मॉडर्न रूल्स में सैलरी अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए रूल क्या है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। अब इधर में सैलरी एक्सपेंस इनकर हो रहा है, यानी एक्सपेंस इंक्रीज, तो एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। देन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का क्लासिफिकेशन असेट, क्योंकि अपने कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा असेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, तो क्या करोगे, क्रेडिट। क्लियर, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री क्या पास हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिस अकाउंट को अपने क्रेडिट करते हैं उसके आगे अपने टू लगाते हैं। तो एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है, हर एक ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेली बेसिस में रिकॉर्ड करना है। तो क्या प्रोसेस है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, देन इन दो एस्पेक्ट में कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है, देन क्लासिफाई करके इंक्रीज डिक्रीज देख कर डेबिट क्रेडिट करना है एंड देन एंट्री पास करना है। और एंट्री पास करने का ये फॉर्मेट है, प्रोफॉर्मा है, जैसे डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट रुपीज क्रेडिट अमाउंट रुपीज, राइट। यस, हर एक एंट्री का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने देते हैं विच इज कॉल्ड नरेशन। अपने नरेट कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली हुआ क्या है, राइट। तो इधर में मटेरियल में क्वेश्चन वन में कुछ सिंपल से जर्नल एंट्रीज अपने को दिए हुए हैं एंड जिनका सोल्यूशन मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाया है, राइट। तो ये क्वेश्चन विद सोल्यूशन एक बार अपने को देखना है, राइट। एंड देन क्वेश्चन टू सॉल्व करना, ये सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हैं। तो क्वेश्चन टू अपने को सॉल्व करना है, राइट। ओके, रेडी, क्वेश्चन टू सॉल्व करें, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन टू। ठीक है, पार्टिसिपेट करना सब कोई, अनम्यूट करके भी कर सकते हैं एंड चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। तो फटाफट पार्टिसिपेट करो, इससे मेरे को ये भी पता चलेगा कि बैच का हमारा जर्नल एंट्रीज किस हद तक कंसेप्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड कितना अपने को साथ में मिलकर काम करने का जरूरत है, राइट। रेडी, सो फर्स्ट एंट्री, कोशिश करना है कि मेरे क्वेश्चन को रीड करने से पहले, ट्रांजैक्शन को रीड करने से पहले आप चैट बॉक्स में उसका एंट्री पास करके दे दो, राइट। सो अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 4 लाख। तो इसमें कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बट एक चीज है, एक चीज है, 3 दिसंबर को जो ट्रांजैक्शन है उसमें बैंक से, बैंक से, वेरी गुड, बैंक से कैश निकाला है 2000, और बिजनेस स्टार्ट किया था 1 दिसंबर, राइट। बिजनेस स्टार्ट किया था 1 दिसंबर एंड 3 दिसंबर को बिजनेस ने अपने बैंक से 2000 रुपया कैश विड्रॉ किए।
फॉर बिजनेस पर्पस। तो उसके लिए तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में रुपया होना चाहिए ना। ये सोनो, 1 दिसंबर को बिजनेस ने स्टार्ट किया, राइट, एंड 3 दिसंबर को बैंक से 2,000 निकाला बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके लिए तो बैंक में बैलेंस होना चाहिए। तो बैंक में बैलेंस आएगा कहाँ से? ऑब्वियस सा बात है, समझ जाओ। ये 4 लाख रुपया सीधा कहाँ गया है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। सो एंट्री इज व्हाट? कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? इट इज कैश टू कैपिटल और बैंक टू कैपिटल। वेरी गुड अर्थम, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसमें एक ट्विस्ट आ गया, क्लियर? इसमें दूसरा ट्रांजैक्शन को देखकर समझ जाना है कि बिजनेस अगर अपने बैंक से 2,000 निकाल रहा है और बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर को, तो बैंक में से रुपया निकालने के लिए बैंक में बैलेंस तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे अपने, कि ये जो 4 लाख रुपया कैपिटल का है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया। सो बिजनेस का बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट असेट इंक्रीज डेबिट, कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैपिटल, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, राइट? देन नेक्स्ट, फटाफट सब कोई पार्टिसिपेट करो। 3 दिसंबर का एंट्री बताओ, किसका है एंट्री? वेरी नाइस, वेरी नाइस, फास्ट Cash to फास्ट। bank. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड by मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। वेरी गुड, परचेजेस अकाउंट, Purchases debit to bank. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट, 8 दिसंबर, फटाफट। sold goods for rupees 16,000 and received payment through bank। फटाफट आंसर आना चाहिए। सेल्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, बैंक टू सेल्स अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक्सेलेंट। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। 10 दिसंबर बताओ, 10 दिसंबर का एंट्री, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक ₹2,500। सबसे पहले किसका? Furniture debit फर्नीचर to अकाउंट bank. डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सेलेंट। सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल। अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,400, ओके। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट अमृत अकाउंट। डेबिट टू अमृत अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत, एकदम कंपटीशन में आ गए सब, नाइस। रिटर्न गुड्स टू अमृत, अमृत अमृत अकाउंट अकाउंट डेबिट Amrit टू डेबिट टू account परचेजेस परचेज debit to रिटर्न। रिटर्न। purchase. अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। Received from Arvind rupees 2,300 in full settlement. बैंक बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू 2,400 300। 2,400। अरविंद नहीं, बैंक अकाउंट अकाउंट, बैंक में कितना रुपया आ रहा है? 2,300 आ रहा है। हाँ, बैंक में डिस्काउंट कितना आ अलाउड रहा अकाउंट डेबिट डेबिट 100 टू 100 अरविंद टू अकाउंट अरविंद अकाउंट 2,400। 2,400। है? एब्सोल्युटली करेक्ट। बैंक में रिसीव कितना कर रहे हैं? 2,300। बैंक या कैश है ये? चलो जो भी है, कैश या बैंक अकाउंट जैसा भी मेंशन नहीं है, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,300, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू अरविंद अकाउंट 2,400, नाइस। अरविंद को 2,400 का सेल किया था, अभी उसको कितना उससे कितना रिसीव करे? 2,300, दैट इज इन फुल सेटलमेंट, यानी इसके बाद अरविंद से और कुछ नहीं मिलेगा, उसका अकाउंट क्लोज। तो 100 रुपया का डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस डेबिट, नाइस। 18 दिसंबर, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, जिधर पर्सनल यूज है उधर ड्रॉइंग्स आ जाएगा, जिधर पर्सनल यूज है उधर ड्रॉइंग्स आ जाएगा, बताओ। Drawing debit to ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट purchases. टू अकाउंट परचेज डेबिट टू 1,000। कैशेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, right? Drawings account debit to purchases account, nice. Then withdrew cash from business for personal use, cash withdraw ड्रॉइंग्स किया। अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स कैश। डेबिट टू ड्रॉइंग्स कैश अकाउंट अकाउंट। डेबिट टू कैश, पेड टेलीफोन चार्जेस, ये टेलीफोन चार्जेस टू कैश, ये मैं बोल दिया, इजी था। देन अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ₹9450, बोलो। Amrit account debit to cash. 9,450 to discount receive 50. करेक्ट। अमृत
से बिजनेस ने गुड्स परचेज किया था, पहले 10,000 का परचेज किया था, राइट। एंड देन देखो ये वाला, अमृत से 10,000 परचेज किया था एंड देन नेक्स्ट डे अमृत को 500 का गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट पेबल टू अमृत? 9,500। सो अमृत को बिजनेस कितना पे कर रहा है? 9,450 इन फुल सेटलमेंट, यानी 50 रुपया का बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, राइट। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, पेमेंट कैश में हुआ है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। हु इज द रिसीवर? अमृत अकाउंट, सो अमृत अकाउंट डेबिट 9,500 to cash account 9,450 to discount receive 50. Then next 31st December, Stationery 31st account debit 200, rent account debit 5,000, salaries account debit 2,000, to bank account 7,200. 7,200, correct. Stationery account debit 200, rent account debit 5,000, salaries account debit 2,000, to bank 7,200. The last one, goods distributed by way Advertisement account debit to purchase. Advertisement account debit advertisement purchases. account debit to purchases, right? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अच्छा, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है फटाफट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि सबके सामने पूछने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, तो यू कैन आस्क डाउट इन प्राइवेट चैट, पर डाउट पूछ लो, राइट। ओपनली पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो डाउट है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को भी हो, तो सबका डाउट एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यहां तक पूरा डिस्कशन सबको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ये आगे चैप्टर्स में भी काम आएगा, स्पेशली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में काम आ सकता है ये टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी अपने को पता है, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जीएसटी किस पर लगाया जाता है? इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो जीएसटी लगाते हैं उसमें, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई। सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई तो जीएसटी इज आईजीएसटी, इंट्रास्टेट सप्लाई तो जीएसटी इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। कैसे देखते हैं? सो टाइप्स ऑफ जीएसटी डिपेंड करता है सप्लाई इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे पंजाब से बिहार सप्लाई हुआ। सो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जो जीएसटी लगाते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। देन नेक्स्ट इंट्रास्टेट सप्लाई, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं, जैसे कोलकाता टू दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है दोनों, कोलकाता दुर्गापुर दोनों वेस्ट बंगाल में है, सो इट इज इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। सो इन दैट केस कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी हुआ तो स्टेट जीएसटी के जगह यूनियन टेरिटरी जीएसटी, दैट इज यूटीजीएसटी। समझ में आया? यूनियन टेरिटरी हुआ तो स्टेट जीएसटी के प्लेस में यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ओके, देन पहले जीएसटी का पूरा बेसिक्स देख रहे एक बार, एंड देन अकाउंटिंग को सीखेंगे तो मजा आएगा। जैसे टाइप्स ऑफ सप्लाई में, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सप्लाई में दो टाइप का सप्लाई है, एक है इनवर्ड सप्लाई एंड दूसरा है आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, इनटेक ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे रॉ मटेरियल्स परचेज किया है। तो जब सप्लाई इज इनवर्ड सप्लाई, यानी आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, रिसीव किया है, इनटेक ऑफ सप्लाई, then in that case the supply, inward supply is our input
and the GST levied on such inward supply is called input GST. समझ में आया ना? इनवर्ड सप्लाई मतलब सप्लाई हम लोगों ने इनटेक लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई लिया है, इनवर्ड सप्लाई। जैसे कोई भी एक्सपेंस अपने करते हैं या जैसे रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, ये सारे मेरे इनवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब इनपुट, इनपुट, तो इस पर जो जीएसटी लगाते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी, जीएसटी में जैसे इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी का मतलब Mr. A of Kolkata has purchased raw materials from Mr. B of Bihar. तो input IGST for Mr. A. Input CGST, input SGST. Mr. A of Kolkata has purchased raw materials from Mr. B of Durgapur. So Mr. A के लिए it is input CGST and input SGST. Right? Input UTGST. Mr. A of Kolkata, समझ में आ रहा है ना? इनपुट जीएसटी कब होगा? व्हेन यूनियन टेरिटरी इज इन्वॉल्व्ड, यस और नो? जैसे दिल्ली, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, हैज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली ओनली, दिल्ली का ही परचेज, दिल्ली का मिस्टर बी है। सो मिस्टर ए ऑफ दिल्ली हैज परचेज्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ दिल्ली। सो मिस्टर ए के लिए इट इज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट यूटीजीएसटी। क्लियर है? सो इनवर्ड सप्लाई के पीछे एक कंसेप्ट सेट कर लो कि एक्सपेंसेस के केस में इनवर्ड सप्लाई, और इनवर्ड सप्लाई तो इनपुट जीएसटी, और अगर इंटर स्टेट हुआ तो इनपुट आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट हुआ तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट यूटीजीएसटी। देन आउटपुट सप्लाई का मतलब जब हमने सप्लाई किया है, गिवन द सप्लाई। इनवर्ट के केस में रिसीविंग द सप्लाई, आउटवर्ड के केस में गिवन द सप्लाई, यानी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया है, जैसे सेल ऑफ गुड्स के टाइम। सो दिस इज आवर आउटवर्ड सप्लाई, हमारा आउटपुट। तो इसमें जो जीएसटी लगता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, जीएसटी यानी आउटपुट आईजीएसटी या फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट यूटीजीएसटी। क्लियर है? यस नो? अब ठीक है, समझ में आया सबको? अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल पार्टिसिपेट करना प्लीज, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, पार्टिसिपेट करो। जैसे मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, मिस्टर ए ऑफ कोलकाता परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ दुर्गापुर। अच्छा, ये कौन सा है? इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? फटाफट जवाब दो। फटाफट जवाब। इंटरेस्टेड, आधा कट गया वो, बोलो। इंटरेस्टेड, इंट्रा स्टेट, क्योंकि विद इन द सेम स्टेट है, कोलकाता दुर्गापुर विद इन द सेम स्टेट वेस्ट बंगाल, सो इट इज इंट्रा, इंट्रा स्टेट। देखो, इंट्रा स्टेट। अच्छा, तो इसमें जो जीएसटी लगेगा दैट इज कौन सा? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कौन सा? फटाफट जवाब दो। जो जीएसटी लगेगा ये कौन सा वाला लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी विद इन द सेम स्टेट, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एस फटाफट जवाब दो। राइट, जहां डाउट है वहां पूछो। अब मिस्टर ए के लिए ये वाला जो सप्लाई है वो इनवर्ड सप्लाई है या आउटवर्ड सप्लाई है? मिस्टर ए के केस में दिस इज इनवर्ड सप्लाई। सप्लाई क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स इज अ सप्लाई। सो मिस्टर ए के लिए इनवर्ड है या आउटवर्ड है? इनवर्ट, inward, इनवर्ड। सो मिस्टर ए के केस में क्योंकि इनवर्ड सप्लाई है तो जीएसटी इज इनपुट और आउटपुट, जीएसटी इज
Very good, Guddu. Input. It is Input. input. So input CGST, input SGST. एंड बी के केस में क्या है? बी क्या कर रहा है? ए को सेल कर रहा है, बिकॉज ए इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम बी, यानी बी इज मेकिंग अ सेल, तो बी के लिए सप्लाई इज इनवर्ट Out. और आउटवर्ड, आउटवर्ड सप्लाई। Outward. तो जो जीएसटी लगेगा दैट इज आउटपुट जीएसटी। कौन सा? आउटपुट एसजीएसटी प्लस आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर? तो देखो, मिस्टर ए ऑफ कोलकाता परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ दुर्गापुर। मिस्टर ए बायर है, उसके लिए इनपुट इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट एसजीएसटी। मिस्टर बी के लिए आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी। देन नेक्स्ट, मिस्टर सी ऑफ पंजाब सप्लाइज गुड्स टू मिस्टर डी ऑफ बिहार। ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? इंटर या इंट्रा? वेरी गुड। Interstate. इंटर Interstate. स्टेट है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है, क्योंकि बिटवीन टू स्टेट्स है, बिटवीन टू स्टेट्स है पंजाब एंड बिहार। तो जो जीएसटी लगेगा दैट विल बी व्हाट? आईजीएसटी। करेक्ट, वेरी गुड गुड्डू, आईजीएसटी लगेगा। अब इस केस में मिस्टर सी के लिए दिस सप्लाई इज व्हाट? इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई? मिस्टर सी के केस में दिस इज मिस्टर सी ऑफ पंजाब सप्लाइज गुड्स टू डी ऑफ बिहार, Outward. outward supply. So GST will be output IGST. And D के केस में D is the buyer, so buyer Input. के input inward supply, so input IGST. Clear है? Next. So अब GST अकाउंटिंग करने का एक फंडा अपने सीख रहे हैं, इससे कभी भी आपके अकाउंटिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, राइट? फंडा ऑफ अकाउंटिंग फॉर जीएसटी अपने सीखने जा रहे हैं। जैसे ध्यान से सुनो, ठीक है? वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, ठीक है? फॉर एक्सपेंसेस, फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी क्या? हमने सप्लाई दिया है या सप्लाई लिया है? सर्विसेज एंड गुड्स का हमने सप्लाई लिया है या सर्विसेज एंड लिया है? लिया So, है। लिया है, तो ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, यानी एक्सपेंसेस के केस में ऑलवेज इट इज इनपुट जीएसटी। ठीक है? तो एक्सपेंसेस यानी हमने सप्लाई इनटेक किया है, तो इट इज इनवर्ड सप्लाई एंड देयरफॉर इनपुट जीएसटी। अब एक्सपेंसेस के केस में रूल क्या है? एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, सो इनपुट जीएसटी भी डेबिट। यानी अगर एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं, एक्सपेंस को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो उस टाइम इनपुट जीएसटी को डेबिट करना है। बट अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, देन उसका इनपुट जीएसटी को भी अपन क्रेडिट करेंगे। ठीक है? यानी एक्सपेंसेस के लिए जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, सेम रूल इज फॉर इनपुट जीएसटी, बिकॉज एक्सपेंसेस यानी हमने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लिया है, तो इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई तो इनपुट जीएसटी। तो एक्सपेंसेस के लिए जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, सेम रूल इनपुट जीएसटी के लिए। तो जब एक्सपेंसेस को इंक्रीज डेबिट कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट होगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा। फटाफट देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। ये चीज अगर सबको समझ में आए, एक बार सबको थम्स अप दिखाओ। लेट्स सी, सबको थम्स अप दिखाओ, अटेंडेंस भी हो जाएगा इससे। राइट, नाइस, सबकी तरफ से थम्स अप आना चाहिए, सबको समझ में आ गया? राइट, नाइस, वेरी नाइस। तो
फटाफट देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। जब हमने परचेज किया रॉ मटेरियल्स का, जब हमने रॉ मटेरियल्स का परचेज किया तो इनपुट जीएसटी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सबसे पहले किसका आंसर आया? डेबिट डेबिट हो वेरी गुड, डेबिट गुड। डेबिट होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी फास्ट। अगर हमने परचेज रिटर्न किया तो इनपुट जीएसटी विल बी क्रेडिटेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिकॉज परचेजेस रिटर्न का मतलब क्या? एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। परचेज किया हुआ गुड्स हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा परचेज का एक्सपेंस कम डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस डिक्रीज, तो क्रेडिट करते हैं, तो इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करना है। क्लियर? राइट, ओके। नेक्स्ट, अब इसका एक जर्नल एंट्री का सैंपल। Mr. A of Kolkata purchased goods from Mr. B of Siliguri, same state, West Bengal. So this is what supply? Inter और intra? फटाफट चैट बॉक्स में क्विकली आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, इंट्रा। इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। सो कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, सो मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, अच्छा हम लोग ए के बुक्स में हैं, ए के बुक्स में हैं, राइट, ए के बुक्स में है। तो ए के लिए दिस इज इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई? इन और आउट? फटाफट जवाब दो। आई फॉर इन, ओ फॉर आउट। इनवर्ड सप्लाई, इन इनवर्ड सप्लाई। सो जीएसटी विल बी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ओके, इनवर्ड सप्लाई तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। नाइस। सो मिस्टर ए ऑफ कोलकाता परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑफ सिलीगुड़ी फॉर रुपीज 10,000। तो परचेज कितना का किया? 10,000। परचेज है 10,000, परचेज 10,000 के, एसजीएसटी 9% है, सीजीएसटी का रेट भी 9% है। 9% यानी 10,000 का 9% इज 900। 900। तो अब जर्नल एंट्री कैसे पास करें? परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। परचेज जो किया वो कितने का आइटम, अमाउंट ऑफ परचेज कितना है? 10,000 ना। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 से ही होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 से ही होगा। परचेज कितने का किया? रॉ मटेरियल्स कितने का है? गुड्स कितने का है? 10,000। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट 10,000। एंड इसी के साथ जो इनपुट एसजीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी है, वो भी डेबिट करेंगे। सो इनपुट सीजीएसटी डेबिट 900, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 900। एंड देन अल्टीमेटली मेरे को सप्लायर मिस्टर बी को कितना पे करना है? व्हाट इज अमाउंट पेबल? What is the amount payable by Mr. A to Mr. B? 10,000 plus 900 plus 900, it is equal to 11,800. So what is the amount payable to the creditor, Mr. B? 11,800. So journal entry कैसे पास हुआ? Purchases account debit, purchases expense increase, debit 10,000, input परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट हो रहा है, तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट होगा, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट 900 900। देन टोटल अमाउंट कितना आ रहा है जो सप्लायर को पे करना है? 11,800। मिस्टर बी इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर, इंक्रीज क्रेडिट, सो टू क्रेडिटर मिस्टर बी 11,800। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, चलो इनकम के लिए। इनकम यानी हमने सप्लाई लिया है या सप्लाई दिया है? इनकम कैसे होता है? इनकम कैसे होता है? सप्लाई देते, दिया है। दिया है सप्लाई, तो हमारा सप्लाई इज आउटपुट सप्लाई। आउटपुट सप्लाई यानी आउटपुट, तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। तो इनकम के लिए जो रूल है, सेम रूल इज फॉर आउटपुट जीएसटी। इनकम के लिए क्या रूल है? इनकम इंक्रीज क्रेडिट करते हैं, तो जब भी इनकम इंक्रीज हो रहा है साथ में आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट करेंगे। देन इनकम डिक्रीज डेबिट करते हैं, तो जब भी इनकम डिक्रीज हो रहा है आउटपुट जीएसटी को भी डेबिट करेंगे। तो बताओ, सेल के केस में आउटपुट जीएसटी को क्या करना है? क्रेडिट या डेबिट? सेल के केस में
सेल के केस में आउटपुट जीएसटी को क्या करना है? वेरी गुड गुड्डू, Credit. क्रेडिट करना है। एंड सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट जीएसटी को क्या करना है? Debit. Debit. डेबिट। ओके, सेल्स रिटर्न के केस में डेबिट। ओके, नाइस। देन मिस्टर ए ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी ऑफ सिलीगुड़ी, सेम स्टेट, सो इंट्रा स्टेट सप्लाई, राइट? ओके, सो कौन सा जीएसटी? एसजीएसटी, सीजीएसटी। हम लोग ए के बुक्स में है, इसमें ए ने सेल किया है, तो ए के लिए द सप्लाई इज आउटवर्ड सप्लाई, सो आउटवर्ड सप्लाई तो आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, राइट? सेल जो आइटम किया है उसका वर्थ कितना है? ₹12,000, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 12,000 से, राइट? यस नो? 12,000 का 9% इज 1080, सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, तो इसके पीछे पीछे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा 1080 से। एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड? टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर डी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर डी? मिस्टर डी से टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेंगे? 12,000 प्लस 1080 प्लस 1080 इज 14,160। Mr. D is debtor, asset increase debit. So Mr. D account debit 14,160 to sales account 12,000 to output CGST 1,080 to output SGST 1,080. Clear है? Yes or no? किसी को जरा सा भी डाउट है इसमें? राइट, तो जर्नल अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का जर्नल अपने डिस्कस किए पंडा। अब टाइम आ गया है कि अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। खोलो चैप्टर 2 यूनिट 1 जर्नल एंट्रीज। रेडी है सब? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछो। दिस कोर्स इज टोटली फॉर यू, टोटली फॉर यू। चलो अभी देखो, अपने को घर में कुछ कुछ सम्स को प्रैक्टिस करना है। जो इजी क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है लिख कर प्रैक्टिस करके। जो इजी क्वेश्चंस है जैसे इलस्ट्रेशन 1, जस्ट गो थ्रू। जर्नल सिंपल जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1। देन इलस्ट्रेशन 2 ये अकाउंटिंग इक्वेशन का है, एक बार देख सकते हैं इसको, देखेंगे डेफिनेटली। रिटन प्रैक्टिस नहीं करना है इलस्ट्रेशन 2 का। देन इलस्ट्रेशन 3 हमने क्लास में सॉल्व किया, वो मिसिंग फिगर्स वाला अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इलस्ट्रेशन 3 आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे घर में, सोल्यूशन मटेरियल में आपको मिल जाएगा, एंड हमने डिस्कस भी किया है डेफिनेटली। एंड देन इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 आपको घर में लिखकर प्रैक्टिस करना है। इलस्ट्रेशन 4 ये रहा, ठीक है? इलस्ट्रेशन 4 घर पर लिखकर प्रैक्टिस करना है। इलस्ट्रेशन 5 अभी डिस्कस कर लिया तो हो गया, इसको दोबारा दिखने का जरूरत नहीं है, वही जो इतना सारा जेनेट्रीज पास किया था, राइट? तो ये हो चुका है। देन इलस्ट्रेशन 6 इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसको एक बार क्विकली अपने घर में देख लेंगे। एंड आपके मटेरियल में एक एक्सरसाइज भी है जिसमें क्लासिफिकेशन करना है एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, तो वो अपने को कर लेना है। एंड देन इलस्ट्रेशन 6 भी एक बार देख लेंगे मटेरियल का। इलस्ट्रेशन 7 इज सिंपल जेनेट्रीज का क्वेश्चन, तो इसको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेने से क्वेश्चन को पढ़ा एंड देन जेनेट्री सोचा, आंसर्स को चेक कर लिया, तो उसी में मेरा प्रैक्टिस हो गया। बेसिक है तो इसको अच्छे से करना हमारा काम है, राइट? अभी जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को अभी अपने क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट? रेडी है? अभी इलस्ट्रेशन 8,
जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहित। ठीक है, राइट, रेडी? सो बताओ, पहला ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर साहिल, साहिल फॉर रुपीज 50,000, यानी परचेज कितना का गुड्स क्या? 50,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 होगा। परचेजेस क्या है? इनवर्ड सप्लाई, तो इनवर्ड सप्लाई परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। 99% कितना हो गया बोलो? 50,000 का 9% इज हाउ मच? So 4,500। 4,500. So who can tell me the correct entry? Purchases account debit, फटाफट बोलो। Purchases account debit 50,000. Input Purchases account CGS. debit, wait. Purchases account debit 50,000, then input Input CGST account 4,000. debit Sorry. 4,500. Account debit 4,500. Very nice, Input very nice. SGST debit 4,500. To True. To cash. to cash, साहिल से परचेज Sorry. किया है, पेमेंट नहीं हुआ है। To Sahil account. To Sahil account, it's a liability To towards Sahil Sahil account because payment has for not been made. So to Sahil account, how much? 59,000. 59,000। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? वेरी नाइस। आमना बेटा क्लियर है? बेटा आमना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जहाँ जहाँ डाउट है पूछेगा, ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। एक ही ऑब्जेक्टिव है, 85 प्लस इन अकाउंटिंग, नथिंग मोर। तो ये टारगेट अपने को अचीव करना है किसी भी हालत, इसको बिना अचीव के अपने रह नहीं पाएंगे, है ना? तो फुल पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट। Purchased goods from Sam for rupees of 40,000 at a trade discount of 10%। ट्रेड डिस्काउंट को तो पहले माइनस करके हटा दो। 40,000 में से 10% माइनस करो, 36,000। यानी अपने को जो भी सोचना है वो 36,000 के रिस्पेक्ट में सोचना है। ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट जर्नल में नहीं आता, मतलब एज एन की ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं होता। इफेक्ट तो आता ही, अमाउंट्स अपने माइनस कर ही रहे, बट इसका जर्नल अलग से पास नहीं होता फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो सबसे पहला काम ट्रेड डिस्काउंट को देखते, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के लिए बोल रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट को देखते, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस करो। 40,000 माइनस 10% इज 36,000। तो सेल हुआ है 36,000 का। आउटवर्ड सप्लाई तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। सेल हुआ है इनकम इंक्रीज क्रेडिट, सो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट 99%। ओके, तो मेरे को एंट्री फ्रेम करके दो। यहां तक ही रीड किया अभी? हाँ, यहीं तक रीड किया। 20,000 के बाद में रीड करेंगे। बताओ। अच्छा, ये परचेज है, मेरा मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी जस्ट रीड किया, आई एम सो सॉरी। दिस इज परचेज ऑफ गुड्स नॉट सेल, माय मिस्टेक। आपको बोलना चाहिए ना, माय मिस्टेक, दिस इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सैम, माय मिस्टेक। सो दिस इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सैम, purchased goods from Sam, purchased goods from Sam, right? Inward supply, input CGST, input SGST। बताओ, इधर तक डिस्कस कर रहे। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, क्योंकि परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, इंक्रीज डेबिट, तो इसलिए इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। फटाफट कौन बोलेगा? संस्कृति बेटा हेल्प कर एक बार। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना से करूं? Purchase account debit 36,000. एक्सेलेंट बेटा, सुपर्ब। देन नेक्स्ट कंटिन्यू कर। Input CGST account debit 3,240, जो कि 3,240 कैसे निकाला? 36,000 का 9%, 9%। ओके नाइस, 3,240. ओके नाइस। फिर inputs SGST account debit 3,240. अच्छा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 3,000. 3240। सो मेरे को बताओ,
जो परचेज किए हैं उसका वैल्यू 36,000 है एंड जीएसटी का 3240 यानी व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल? टोटल अमाउंट पेबल इज हाउ मच? टोटल अमाउंट पेबल कितना रहे? 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 इज कमिंग टू हाउ मच? 42,000. So it's coming 42,480. 42,480. Hmm. 42,480 is the total amount payable for this purchase. Yes or no? Total amount payable, जिसमें से 20,000 was paid immediately. 20,000 was paid immediately. 20,000 was paid immediately. तो टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000. 20,000. तो बैलेंस कितना रहे? To 42,480 Sam में account 22,480. टू सैम अकाउंट. बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 22,480, दैट Wow. अमाउंट इज पेबल टू सैम. लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट कितना? 22,480. ठीक है, राइट, ओके, नाइस. अरहम पार्टिसिपेट कर बेटा. 3 वाला मेरे को हेल्प करो. गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज मेरा ये ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया. Such goods were purchased by paying CGST and SGST at the rate of 9% each. इसका एक हैक बताऊं? एक हैक बता रहा हूं. मेरे को बताओ, जब गुड्स विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, विदाउट जीएसटी क्या एंट्री पास होगा? विदाउट जीएसटी क्या एंट्री पास होगा? नॉर्मल एंट्री क्या है विदाउट जीएसटी? सपोज जीएसटी नहीं है तो विदाउट जीएसटी क्या एंट्री पास होगा? गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज के लिए एंट्री इज Drawing account debit to purchases. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. ये हुआ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. अब एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? परचेजेस एक्सपेंस है, इधर में डिक्रीज क्रेडिट हो रहा है. सो परचेजेस क्रेडिट हो रहे हैं. इसके पीछे पीछे, इसके पीछे पीछे एज अ पोनी टेल, पीछे पीछे क्या होगा बोलो? परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट. तो इसके पीछे पीछे हमारा इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा. गुड्डू क्लियर है? फटाफट जवाब दो, है ना? परचेज एक्सपेंस जब भी डेबिट तो इनपुट जीएसटी डेबिट. एक्सपेंस जब भी क्रेडिट तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट. क्लियर है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, गुड्डू क्लियर है बेटा ये वाला? गुड्डू है कि गया? चलो, परचेजेस का अमाउंट बताओ. टू परचेजेस कितना से कितना का गुड्स विड्रॉ हुआ? 20,000. 20,000. 20,000 परचेजेस का अमाउंट 20,000 है. यानी जो गुड्स विड्रॉ किया प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, उसका कॉस्ट वाज 20,000. सो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 20,000. 20,000 पर जीएसटी निकालो. 20,000 का 9% इज हाउ मच? 1,800. 1800 to input CGST 1800 to input SGST 1800. So drawings account debit कितना से हो गया? 23,600. 23,600. Excellent. चलो next. Paid rent to Gagandeep for rupees 30,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. ये paid rent मेरा expense है. Expense यानी inward supply, inward supply यानी input, इनपुट, इनपुट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. अब इसका एंट्री कैसे पास करेंगे देखो. पेड रेंट टू गगनदीप
विदाउट जीएसटी एंट्री सोचो, रेंट टू कैश होता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, विदाउट जीएसटी ये वाला एंट्री है। अब इधर हाँ में रेंट मेरा एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो इसके पीछे हाँ, पीछे इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। सुपर सुपर। अब अमाउंट अपने पुट कर देंगे। हम्म। रेंट का अमाउंट कितना है? 30,000। 30,000। हाँ। इस पर जीएसटी लगाओ 6% का। 1,800। 1,800, 1,800। सो हम्म। पेमेंट टोटल कितना करना है? 30,000। 33,600। वेरी गुड, 33,600। देन 5 में गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अरे यार, ट्रेड डिस्काउंट को देखते ही माइनस कर देना है, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 4,500। 4,500। रिटर्न टू सैम, तो ये मेरा क्या है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, बिकॉज पॉइंट टू रोमन 2 में देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सैम, यानी सैम से परचेज। सो सैम को क्या हो रहा है अभी? परचेजेस रिटर्न। ठीक है। अब मेरे को विदाउट जीएसटी एंट्री बताओ परचेजेस रिटर्न का। सैम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। सैम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, सैम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। अब हम्म। जीएसटी का सोचो, परचेजेस टू। रिटर्न एक्सपेंस, एक्सपेंस डिक्रीज, क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए टू, तो इसलिए इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा, है कि नहीं? टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। आई बात समझ में? सो विदाउट जीएसटी पहले एंट्री को सोचा, सैम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न यानी एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, तो जिधर एक्सपेंस क्रेडिट वहां पर इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट। सो इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट। सो परचेजेस रिटर्न कितने का हुआ? 4,500 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 4,500। इस पर 99% का जीएसटी लगाओ, 4,500 का 9% बताओ। 405. 405। 405, 405। ओके, तो सैम अकाउंट डेबिट कितना से करोगे? फटाफट अमाउंट आना चाहिए। 53। 5,310. ओके, देन परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है, तो हमने फर्नीचर का सप्लाई लिया है। फर्नीचर खरीदा है यानी फर्नीचर का सप्लाई लिया है, ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, राइट? हम्म। ओके, सो इनवर्ड सप्लाई यानी इनपुट, तो इनपुट फर्नीचर आईजीएसटी। अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजी, ओ सॉरी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, अच्छा इनपुट आईजीएसटी दिया हुआ है, सॉरी सॉरी। तो इसमें देखो ना, एक ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट है, देखते हैं। जैसे इसमें परचेज फर्नीचर फॉर ₹44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी, यानी 44,800 में आईजीएसटी का अमाउंट 12% के हिसाब से इंक्लूडेड है। आईजीएसटी का रेट कितना है? 12%। यानी ये जो अमाउंट है दिस इज 112%, इसमें 12% का जीएसटी इंक्लूड होने के बाद ये 112% हो गया। सो विदाउट जीएसटी बताओ कितना आएगा अमाउंट? फर्नीचर का अमाउंट कितना थर्टी आएगा? नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर 44,800 divided by 112 into 100 is coming to how much? 40,000. 40,000 आएगा ना? नहीं सर समझी? आप कैलकुलेशन रिपीट कर सकते हो? नहीं। कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%, यानी हम्म। 12% को ऐड करने के बाद ये हो गया 112%। परसेंट मतलब हम्म। क्या? सेंट मीन्स 100। हम्म। तो 12% का आईजीएसटी है, 12% इंक्लूड करने के बाद ये अमाउंट हो गया 112%, फर्नीचर का 112%। सो करेक्ट। ये जो 44,800 है, 44,800 इज फर्नीचर का 112%। तो अमाउंट ऑफ हम्म। फर्नीचर कितना होगा? 44,800 बाई 112 इंटू 100, कितना आ रहा है? 40,000। हम्म। यस। क्लियर है? तो यस सर, थैंक फर्नीचर यू। का अमाउंट, फर्नीचर का अमाउंट इज 40,000 40,000। एंड जीएसटी का अमाउंट इज फोर 4,800। थाउजेंड एट हंड्रेड करेक्ट। अब इसका एंट्री बताओ,
फर्नीचर इनवर्ड सप्लाई फर्नीचर इनपुट अकाउंट डेबिट 40,000 40,000 बिकॉज 40,000 का इनपुट फर्नीचर इनपुट IGST डेबिट 4,800 टू बैंक 44,800 क्लियर है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000 इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक 44,800 क्लियर है यस नो देन purchased machinery from Messrs Symphony Industries for 1,40,000 प्लस यानी इसमें जोड़ना है CGST SGST 99% बोलो मशीनरी परचेज किया है तो हमने मशीनरी का सप्लाई लिया है ये इनवर्ड सप्लाई हुआ तो इनपुट CGST इनपुट SGST क्लियर मशीनरी परचेज हुआ है मशीनरी अकाउंट एसेट इंक्रीज डेबिट तो इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट मशीनरी कितना का परचेज हुआ 1,40,000 सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1,40,000 का 9% कितना आता है 12,600 सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 12,600 इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,600 टू what is the total amount payable for purchase of machinery 1,40,000 plus 12,600 plus 12,600 कितना आ रहा है 1,65,200. 1 लाख वेरी गुड आमना 1,65,200 आ रहा है इसमें से 1 लाख रुपए इमीडिएटली पेमेंट कर दिया तो टू बैंक 1 लाख रुपया हो गया बाकी बैलेंस कितना बच रहा है 65,200 200. सो किससे परचेज का हुई द सप्लाई सिम्फनी इंडस्ट्रीज तो मेरा लाइबिलिटी है मेरा 65,200 टू बी पेड टू सिम्फनी इंडस्ट्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट सो टू सिम्फनी इंडस्ट्रीज अकाउंट 65,200 क्लियर है यस और नो तो एंट्री क्या बना दोस्तों मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 12,600 इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,600 टू बैंक 1 लाख टू मेसर सिम्फनी इंडस्ट्रीज 65,200 क्लियर है इजी टू सॉल्व एक सेकंड क्या हो गया हाँ ठीक है चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो बेटा कोई दिक्कत नहीं रिलैक्स होकर क्लास करो बट क्लास करो ठीक है कोई बात नहीं अनम्यूट नहीं हो पा रहे कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9 फटाफट करते हैं रेडी अच्छा इसको कौन टेकअप करेगा अच्छा पुरुषोत्तम बेटा आप करो ये वाला जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स निधि ट्रेडर्स sold goods for rupees 50,000 charged CGST SGST at the rate of 6% each बोलो विदाउट GST एंट्री क्या होगा विदाउट GST एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट यस और नो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पार्टी का नाम मेंशन नहीं इसका मतलब पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड अदरवाइज पार्टी का नाम मेंशन होता so this is a cash sale yani payment has been received in bank so bank account debit to sales account sales outward supply so GST is output CGST output SGST sales income increase credit to output CGST credit output SGST credit yes संस्कृति करेक्ट हुआ ना बेटा संस्कृति मेरे Yes, को sir. अमाउंट बताएगी फटाफट अमाउंट बताओ Bank account debit 56,000. टू To सेल्स sales बताओ पहले टू सेल्स 50,000 50,000. 50,000 का 6% इज फिर हाउ मच output 6% बताओ इसका 3,000. 3,000 ये भी 3,000 तो पेमेंट कितना हुआ 56,000 एक्सेलेंट देन सोल्ड गुड्स टू सुरजीत इधर में पार्टी का नाम मेंशन्ड है और पेमेंट हुआ है ये मेंशन नहीं है तो दिस इज अ क्रेडिट सेल
तो क्रेडिट सेल के लिए एंट्री इज वही सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, है ना? ये हो जाएगा। बताओ, सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स कितना 28,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 28,000 का 6% कितना हुआ? अच्छा, दिस इज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक मिस्टेक अपने कर दी, दिस इज इंक्लूडिंग, दिस इज इंक्लूडिंग वन मिस्टेक। देखो, वी हैव टू बी केयरफुल, दिस इज इंक्लूडिंग 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 सीजीएसटी इंक्लूडिंग एसजीएसटी। सीजीएसटी का कितना 6%, एसजीएसटी का कितना 6%, तो टोटल कितना हो गया 12%। तो इसमें 12% का जीएसटी इंक्लूडेड है, तो मेरे को विदाउट जीएसटी सेल्स का अमाउंट चाहिए ना। तो विदाउट जीएसटी सेल्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 28,000 में 12% का जीएसटी इंक्लूडेड है, तो विदाउट जीएसटी अमाउंट कैसे निकालोगे? 28,000 बाई 112 इंटू 100 कितना आ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट? 25,000. 25. 25,000. 25,000, 25,000। चलो, अब अपने एंट्री हौले हौले कर सकते हैं। सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000, है ना? सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000 टू सेल्स अकाउंट 25,000 टू आउटपुट सीजीएसटी कितना आएगा? 1,000। 1,500. वेरी गुड, 1,500 टू आउटपुट एसजीएसटी 1,500, करेक्ट। देन जुलाई 5 में रिसीव्ड 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। सुरजीत से 28,000 रिसीव करने का था, बट सुरजीत ने कितना पे किया है? रिसीव कितना किया हमने? 25,200, दैट इज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। तो 28,000 की जगह फुल सेटलमेंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ? कम अमाउंट रिसीव हुआ 25,200, यानी डिफरेंस कितना? डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,800. 2,800 का क्या है? दिस इज डिस्काउंट अलाउड और रिसीव? Allow. दिस इज Allowed. डिस्काउंट अलाउड। सो सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट 25,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,800 टू सुरजीत 28,000। यस नो? क्लियर है? देन नेक्स्ट 6 में आ जाओ। जुलाई 6, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000, चार्ज आईजीएसटी 12%। अभी इंक्लूडिंग वाला वर्ड के लिए अपने को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जिधर है उधर में जीएसटी को हटाकर। सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000, चार्ज्ड IGST at the rate of 12%, received ₹12,000 immediately and balance to be received after 1 month। तो मेरे को बताओ, इधर में सेल हुआ है आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटपुट IGST, सेल क्रेडिट, सो आउटपुट IGST क्रेडिट, राइट? सो टू सेल्स, सेल कितना का गुड्स? व्हाट इज अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड? सोल्ड फॉर हाउ मच? 30,000. 30,000 to two sales account 30,000 to output IGST 30,000 का 12% is how much? 3,600. 3,600, 3,600 to sales account 30,000 to output IGST 3,600, यानी टोटल अमाउंट कपिल से कितना मेरे को पाने का है? 33,600, 33,600। रिसीव्ड ₹12,000 इमीडिएटली, यानी बैंक में 12,000 तुरंत आ चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ। बैलेंस कितना हो रहा है? 33,600 माइनस 12,000 इज हाउ मच? हाउ मच इज इट कमिंग? 21,600. 21,600, 21,600। सो कपिल अकाउंट डेबिट, कपिल अकाउंट डेबिट 21,600, कपिल से 21,600 रिसीव करने का है, इट इज एन असेट। यस और नो? ओके,
So entry is Kapil account debit 21,600, bank account debit 12,000, to sales account 30,000, to output IGST 3,600. Okay, ready? Done. Now July 10, very interesting. July 10 में आ जाते हैं. अच्छा, वाई बैंक अकाउंट डेबिट, वाई नॉट कैश अकाउंट? क्यों नहीं कर सकते बैंक अकाउंट डेबिट? कैश अकाउंट कोई भी डेबिट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. आपका आंसर करेक्ट होगा. कैश अकाउंट की जगह, सॉरी, बैंक अकाउंट की जगह आप कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं. जहां क्वेश्चन साइलेंट है आपके पास ऑप्शन है, आप कैश लो या बैंक लो, बट जनरली हम लोग बैंक लेना प्रेफर करते हैं. अदरवाइज अगर आप कैश अकाउंट को भी डेबिट करते हैं तो भी करेक्ट. चलो, जुलाई 10 में कपिल वॉज अलाउड. कपिल कौन? यही वाला बंदा. कपिल वॉज अलाउड रिबेट. रिबेट का मतलब क्या होता है? रिबेट का मतलब 5,000 छोड़ दिया कपिल. कपिल से कितना रुपया रिसीव करने का था? 21,600. 5,000 उसमें बाद दे दिए. रिबेट इज नॉट ए डिस्काउंट. चीज को समझो. तीन टाइप से अपने डिस्काउंट दे सकते हैं. जैसे ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? जब बल्क में परचेज सेल करें. एंड डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव कब होता है? कैश पेमेंट के टाइम. अर्ली पेमेंट. अर्ली पेमेंट मेड इन कैश, तो कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड. रिबेट का मतलब क्या होता है? छूट देना, मनी पैसा को छोड़ देना. कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ ₹5,000 as goods supplied to him were defective. तो 5,000 छोड़ दिया. These goods were sold by charging IGST at the rate of 12%. इसका एंट्री बताओ. Rebate account debit रिबेट. और रिबेट मेरा output क्या? एक्सपेंस इनकम क्या है? रिबेट मेरा क्या है? expense है. एक्सपेंस है. एक्सपेंस है. ओके. Expense. रिबेट मेरा एक्सपेंस है. ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. सो रिबेट कितने का है? 5,000 का रिबेट दिए. रिबेट का छूट 5,000. देन 5,000 छोड़ा है. Output डिफेक्टिव गुड्स के लिए IGST. 5,000 छोड़ा है. हम्म, अच्छा, कपिल को अपने 5,000 छोड़ रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट आईजीएसटी है उसको भी क्या करना होगा? रिवर्स. ये सोनो. Yes sir. कपिल मेरा कस्टमर, उससे हमने आईजीएसटी चार्ज किया था. अब अगर अपने उसको 5,000 छोड़ रहे हैं फॉर डिफेक्टिव गुड्स, तो 5,000 पर जो आउटपुट आईजीएसटी है उसको भी क्या करना होगा? रिवर्स. यस और नो? कपिल को अपने जीएसटी लगाकर पैसे मांगे. अभी कपिल को 5,000 छोड़ रहे हैं डिफेक्टिव गुड्स के कारण, तो 5,000 पर जो आउटपुट जीएसटी है उसको भी अपने को रिवर्स करना पड़ेगा. आउटपुट जीएसटी को क्या किया था? क्रेडिट. अभी क्या करना पड़ेगा? डेबिट. समझ में आया ना? ये सबको क्लियर है? कपिल को 5,000 छोड़ रहे हैं. कपिल को हमने गुड्स बेचा था जीएसटी लगाकर, तो जब कपिल को 5,000 छोड़ रहे हैं तो उसका जो आउटपुट जीएसटी है उसको भी क्या करोगे? रिवर्स. आउटपुट जीएसटी को पहले क्रेडिट किया था, अभी क्या करोगे? रिवर्स करते टाइम डेबिट. सो आउटपुट आउटपुट आईजीएसटी क्या हो जाएगा? डेबिट. कितना से बोलो? 5,000 का 12% इज हाउ मच? 600. 600. 600. टू कपिल. कपिल कितना हो जाएगा? 5,600. यानी नेट में कपिल कितना से क्रेडिट हो रहा है? 5,600. टोटल में कपिल क्रेडिट कितना से हो रहा है? 5,600. राइट? ये सोनो. तो अभी कपिल से कितना रिसीव करना बच गया? 21,600 तो पहले से बाकी था. अभी 5,600 क्रेडिट करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कपिल? 16,000. 16,000. 16,000. करेक्ट. आमना है क्लास में? Yes sir. आमना बेटा मेरे को हेल्प करेगा अभी. सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर ₹1,00,000. ये सेल है. ट्रेड डिस्काउंट गंदगी है. 20% का हटा दो. हटाने के बाद 80,000 का सेल हुआ है.
ठीक है, एंड चार्ज IGST एट द रेट ऑफ 12%। बताओ बेटा। So Manpreet account debit. पहले एंट्री बता दे, फिर अमाउंट हौले हौले करके बता। Manpreet account debit to sales मनप्रीत account टू, to output IGST account. वेरी गुड। अब बानी, बानी है टू सेल्स अकाउंट 80,000 है, 80,000 का Eight- 12%, 9,600. तो मनप्रीत अकाउंट डेबिट होगा 89,600 से। एक्सेलेंट। 89,600. अभी क्या हो रहा है, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। सो ये मेरा क्या है, सेल्स रिटर्न। ये मेरा क्या है, सेल्स रिटर्न। मनप्रीत को क्या किए थे, सेल, वापस गुड्स मिल रहा है, तो दिस इज सेल्स रिटर्न। अच्छा, ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस 12,000 मतलब क्या, दिस इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस इज ऑलवेज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो अपने को जो ट्रांजैक्शन एंट्री पास करना है दैट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 20%, सो 20,000 का 20% 4,000, सो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 16,000, यानी सेल्स रिटर्न 16,000 का हुआ है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000। अब सेल्स रिटर्न हो रहे, सेल रिटर्न होने से इनकम डिक्रीज डेबिट, सो इनकम डिक्रीज डेबिट। डेबिट तो आउटपुट IGST को भी क्या करोगे, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट के साथ आउटपुट IGST डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 16,000 का 12% निकाल के दो, कितना रहे, 16,000 का 12%। फटाफट कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है, 16,000 का 12% इज 1,920. 1,950। वेरी गुड। 920. 920, थैंक यू। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 1920। टू मनप्रीत अकाउंट कितना, 17,920। ओके, देन नेक्स्ट जुलाई 17, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन इनकम है, इनकम है, इनकम है तो आउटवर्ड सप्लाई यानी आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। रिसीव्ड यानी कैश में रुपया आ चुका है, या बैंक में, जैसा भी आप, जिसको भी आप करो, कैश या बैंक जो भी। सो रुपया रिसीव हो चुका है, कैश आ चुका है, बैंक में रुपया आ चुका है, राइट। यस नो, क्लियर। सो इनकम इंक्रीज क्रेडिट करते हैं, सो कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कमीशन कितने का है, 15,000। जैसे इनकम, जैसे इनकम इंक्रीज क्रेडिट करते हैं, इनकम इंक्रीज क्रेडिट के साथ आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST को भी क्रेडिट करना है, बिकॉज इनकम रिसीव होना मतलब क्या, इनकम का होना मतलब हमने सप्लाई दिया, हमने सप्लाई दिया नहीं, हमारा आउटपुट सप्लाई है, तो आउटपुट सप्लाई पर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सो कमीशन के साथ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST भी क्रेडिट होगा। कमीशन इनकम इंक्रीज क्रेडिट, सो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST भी क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, बैंक या कैश, जो भी आपको ठीक लगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कौन फटाफट मेरे को अमाउंट बता कर देगा, कौन मेरे को हेल्प कर रहा है। Bank account debit 16,800 एक्सेलेंट, to commission received 50,000 to output PGST 900 to output SGST 900. नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, सो डन विथ इलस्ट्रेशन 9। फटाफट इस यूनिट का एक आखिरी इलस्ट्रेशन बचा हुआ है, इलस्ट्रेशन 10, इसको करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल अज्यूमिंग, यानी पहले ही GST का अमाउंट अपने को बता दिया, CGST SGST, यानी जो भी सप्लाई है वो सारे कौन से सप्लाई है, इंटर या इंट्रा, दे आर इंटर और इंट्रा, कौन बताएगा फटाफट। इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रा। इंट्रास्टेट सप्लाई, ओके। सो सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर ट्रेड डिस्काउंट,
लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 20%, हटा दो ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना रहे सेल 40,000। तो मुकेश को सेल किया है, एंट्री इज मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी टू सेल्स कितना 40,000, 40,000 का 6% सीजीएसटी एसजीएसटी एंड टोटल अमाउंट से मुकेश अकाउंट डेबिट। क्लियर? यस नो? ओके, देन रोमन 2, सोल्ड गुड्स टू मुकेश, फिर से मुकेश at the list price of rupees 1 lakh less 20% trade discount and 5% cash discount। अच्छा, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब पेमेंट पहले करते हैं, अर्ली पेमेंट, मतलब अर्ली पेमेंट के टाइम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो पेमेंट का एंट्री, इसमें तो एंट्री होगा, एक सेल का एंट्री होगा, एक पेमेंट का एंट्री होगा। पेमेंट के एंट्री के टाइम कैश डिस्काउंट, समझ मारे ना? इसमें दो एंट्रीज पास होगा, भले इंस्टीट्यूट ने इसमें एक ही एंट्री पास किए, बट हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर्पस के दो ही एंट्री पास करेंगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, तो जाकर अपना आंसर भी करेक्ट होगा। तो अपने दो एंट्रीज पास करेंगे, एक है पहले सेल का एंट्री एंड दूसरा है पेमेंट का एंट्री। तो मेरे को फटाफट बताओ, सेल का एंट्री एकदम वैसे जैसा अभी पहले रोमन 1 में डिस्कस किया। बताओ, मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट to output CGST account to output SGST account। ओके, राइट। सेल्स कितना क्या क्या? 1 लाख लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल 80,000 का हुआ। 80,000 का 6% निकालो, कितना रहे? 4,800, 4,800। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 80, कितना रहे? 89,600 आ रहा है। सो मुकेश अकाउंट डेबिट 89,600, मुकेश अकाउंट डेबिट 89,600। सो मुकेश से टोटल में अपने को 89,600 रिसीव करना है, रिसीवेबल डेबिट। अभी पेमेंट का भी एंट्री साथ में करेंगे, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट मिला यानी उसने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा? पेमेंट का एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपको ठीक लगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। 5% का कैश डिस्काउंट है, इधर में डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, बिकॉज पेमेंट रिसीव करते टाइम हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। टू मुकेश अकाउंट, मुकेश अकाउंट। सो मुकेश से 89,600 पाने का था, 89,600 का 5% निकालो। कौन फटाफट बोल रहा है मेरे को? कौन? 4,480। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो कितना रिसीव किया अल्टीमेटली आफ्टर कैश डिस्काउंट? 85,120। करेक्ट। $85,120। इसमें इसमें शायद इंस्टीट्यूट का रॉन्ग आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंस्टीट्यूट का रॉन्ग आंसर है, तो अपने करेक्शंस कर लेंगे। ठीक है, अपना आंसर करेक्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। राइट, ओके, चलो। नेक्स्ट, दिस इज करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट 85,120, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4480 टू मुकेश अकाउंट 89,600। रोमन 3 में आ जाओ। sold goods to Mukesh at the list price of rupees 1,50,000 less 20% trade discount। so 20% trade discount के बाद सेल का अमाउंट निकालो, 1,20,000, 1,20,000। अच्छा, पेमेंट भी हुआ है, तो पेमेंट का एक साथ नहीं कर रहे, क्लमजी हो जाएगा, कंपाउंड एंट्री पास नहीं कर रहे, थोड़ा अपना स्किल को नहीं आजमा रहे। ठीक है, तो एक एक करके कर रहे हैं, यानी जिधर में सेल के साथ पेमेंट भी रिसीव हुआ है, तो सेल का अलग एंट्री, पेमेंट का अलग एंट्री करने से क्लैरिटी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, और आंसर भी करेक्ट होगा। तो अपने वो चीज मेंटेन कर रहे हैं। तो पहले सेल का एंट्री पास करें। सेल का एंट्री में बताओ, सेल का एंट्री बता दो कोई मेरे को।
सेल का एंट्री इज मुकेश अकाउंट Mukesh डेबिट, account debit to sales, to output CGST, to output SGST. जिन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग एक कदम आगे चल रहे हैं, तो सबको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना का क्या, 1,20,000, जीएसटी का रेट कितना है, 6%, 1,20,000 का 6%, 7,200। 7,200. सो मुकेश से कुल कितना रिसीव करेंगे हम, 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 कितना आ रहा है, 30. 1,34,400. हाँ, वन 1 लैख lakh थर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड आ रहा है। 34,400. करेक्ट, 1,34,400 अपने को मुकेश से रिसीव करना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू अभी कितना निकाला, कितना रिसीव करना है मुकेश से, 1,34,400, 60% इज रिसीव्ड, यानी 60% रिसीव हो चुके हैं, यानी 60% अभी भी बाकी है, तो बाकी रहने तो कोई बात नहीं, बाद में रिसीव कर लेंगे। तो जो 60% रिसीव है उसका एंट्री पास करेंगे, 60% जो रिसीव उसका एंट्री पास करेंगे, 1,34,400 का 60% इज हाउ मच, 80,600. 80,640 रिसीव हुआ है। बिजनेस को रिसीव हुआ, किसने दिया, मुकेश ने दिया, हु इज द गिवर, बोलो, चलो, नाइस, क्लियर। सो 80,640 मुकेश से रिसीव है, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक, यानी मुकेश से जो मेरे को 80,640 रिसीव हुआ है उसका 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक। सो 80,640 का 3/4 करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 60,480. 60,480 चेक से रिसीव हुआ है, 60,480 चेक से रिसीव हुआ है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 60,480, 60,480 अगर चेक से रिसीव हुआ है तो बैलेंस अमाउंट कितना, 80,640 20,160. 20,160 कैश में रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट 20,160 टू मुकेश अकाउंट हाउ मच, 80,640। समझ में आया, यस नो। सो मुकेश से 1,34,400 रिसीव करने का है, जिसमें से 60% ऑफ द अमाउंट ड्यू, सो अमाउंट ड्यू इज 1,34,400, उसका 60% इज 80,640, 80,640 इज रिसीव्ड, तो जो रिसीव है उसका एंट्री पास करेंगे, जो रिसीव होना बाकी वो अकाउंट में पड़ा रहेगा, बाद में रिसीव करेंगे। अभी 60% रिसीव किया तो अभी उसका एंट्री पास हो रहा है, 60,840 का एंट्री पास होगा, 60,000 60 सॉरी 80,640 जो रिसीव हुआ है उसमें से 3/4, 80,640 का 3/4 है 60,480 रिसीव्ड बाय चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,480, बैलेंस अमाउंट 80,640 माइनस 60,480 कैश में रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 20,160 टू मुकेश 80,640। देखो इससे अपने को ये सीख मिल गया है कि जहां पर सेल और पेमेंट दोनों साथ साथ है भैया, हम तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज ना होंगे, तो अपने दो अलग अलग एंट्रीज पास करके क्लैरिटी रखते हुए आंसर को करेक्ट करके आएंगे, राइट। तो इसी के साथ चैप्टर टू अकाउंटिंग प्रोसेस, चैप्टर टू अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट 1 जर्नल एंट्रीज हमारा राइट ओवर डन, क्लियर है। तो अभी हमारा टास्क क्या है, अभी हमारा टास्क इज अपने को चैप्टर के एंड में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लेना है घर पर, एंड जो डाउट है इसको नेक्स्ट क्लास, कल ही है, नेक्स्ट क्लास करके लाना है, ठीक है। ये अपने डेली बेसिस में टारगेट को सेट करेंगे, डेली बेसिस में टारगेट को सेट करेंगे, एंड अगर अपने को 85% ऊपर चाहिए तो आपको वैसे ही करना है जैसा मैं आपको कहूं। तो अपना कल का टास्क
करना मतलब करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। क्योंकि अपना अपना टारगेट इज 85 प्लस, एंड अगर बहुत हुआ तो 90 प्लस तो लाना ही है, राइट। तो उसके लिए अपने को जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है, एंड टारगेट से पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, टारगेट को अचीव करना ही है, राइट। सीए फाउंडेशन मतलब एक बार में क्लियर करना है। ठीक है, चलो। तो अपना कल का टारगेट इज चैप्टर के एंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इलस्ट्रेशंस जो अभी ऊपर में हमने सॉल्व किया उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिख के सॉल्व करना है, इलस्ट्रेशन 3 लिख कर सॉल्व करना है, देन इलस्ट्रेशन 8 9 10 लिख कर सॉल्व करना है। ये सब हम लोगों ने क्लास में कर लिया है, वैसे तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिखकर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये अपने को कल के क्लास में आने से पहले कर लेना है। सर हाँ बोलो। सर कल के बाद आप बीआरएस चालू कर दोगे क्या? नहीं, वो मैं राइट, सीरियल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल का जो ऑर्डर है ना वही मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज एक एक करके सीरियल ऑर्डर से ही अपने चलेंगे तो सही रहेगा, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट। एंड मैंने प्लानर शेयर कर दिया है। टाइम इज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी एवरी डे 6 PM 6 to 8। क्लियर? ठीक है। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे को, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो। सो चैप्टर 2 यूनिट 1 जनरल एंट्रीज खत्म। एक और टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, वो कल करके आना है। ये जो स्टडी मटेरियल है जो मैंने आपके पास है ये, तो इसका अपने को लेजर का कंटेंट को रीड करना है एक बार, एकदम स्टोरी टेलिंग की तरह लेजर का कंटेंट को रीड करना है। बिकॉज हम लोग कल स्टार्टिंग में लेजर का ब्रीफिंग लेकर, ट्रायल बैलेंस का ब्रीफिंग लेकर, एक क्वेश्चन लेजर अकाउंट के लेजर के चैप्टर में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, एंड देन ट्रायल बैलेंस का ब्रीफिंग लेकर एक सम को सॉल्व करके वी शैल मूव अहेड विथ अ न्यू चैप्टर। ठीक है, तो कल के लिए एक और टास्क मेरा हो गया है कि स्टडी मटेरियल से मेरे को लेजर का कंटेंट खाली रीड करना है, सम को सॉल्व नहीं करना है, लेजर के कंटेंट को रीड करना है एंड ट्रायल बैलेंस के कंटेंट को रीड करना है, दैट इज इट। तो अपना इन टोटल कितने क्या क्या टास्क है? कल के क्लास से पहले अपने को जर्नल एंट्रीज का 3 इलस्ट्रेशन, सॉरी 4 इलस्ट्रेशन, 3 8 9 एंड 10 ये लिखकर रिटन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारा 1 to 6 रिटन प्रैक्टिस, एंड देन स्टडी मटेरियल से जर्नल का कंसेप्ट नोट, ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट नोट, ये कल के क्लास से पहले करके रहना। लिख के रख लो, देखो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है तो ये प्रूफ है। प्रूफ किस बात का है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, पॉइंट टू पॉइंट मैं जो सब बोल रहा हूं वैसा करोगे, राइट, तो आपका 85 प्लस आना ही आना है, श्योर शॉट। ये लिख के रख लो, समझ में आया? ठीक है, सो जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करना है। चलो देन, आज के लिए इतना। डेली बेसिस में अपने क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट का टारगेट्स को सेट करेंगे जो कि आपको डेली बेसिस में वो अचीव करना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ओके देन, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? रिवीजन अच्छा लगा? यस नो? यस सर। चलो यस सर। ओके, चलो, सी यू देयर टुमारो देन 6 o'clock। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय।